Sir? Yeah. Okay. Thank you, Dr. Praveen Meshram, sir, for shouldering this responsibility to introduce such a versatile personality from Nagpur city only, who loves nature and also takes care of nature. This is Mr. Kaustav Chatterjee. On behalf of whole team of UGC HRDC Nagpur and all the participants, I welcome you, sir, on this wonderful session of refresher course in environmental science. In brief, sir is a gold medalist student of Rashtrasanta Tukdoji Maharaj Nagpur University, Nagpur in environmental science. He also have PG degrees in environmental management and human resources development to his credit. Now moving towards his work of interest, he is a founder of Green Vigil Foundation, which exclusively works for sustainable future of Mother Earth and the atmosphere around it. He has 29 years of huge experience in the field of environmental management and water treatments. Sir designed more than 150 water treatment plants in India and abroad. The Green Vigil Foundation has undertaken more than 500 campaigns for his environmental sustainability. Some of them I wanted to quote is Parisar Palakatva Yojana, Pathanatya on local global environmental issues, eco-friendly Ganesh and Devi Visarjana such. This shows his respect for nature and environment. He is an advisor to Nagpur Municipal Corporation in all environmental issues and brand ambassador for Swachh Bharat Mission Nagpur. He is a core team member of various such organizations which are of environmental concern. He is a he is a board of member of environmental science in RTMNU Nagpur University, and he is also on ethic committee of Bhokard group of hospitals. He has prestigious 50 and more awards to his credit. I need to quote some of them. COVID Yodha, given by Honorable Minister Nitin Gadkari and Devendra Fadnavis. He is a man constantly working with the zeal and zest for environmental protection. It is very difficult to quote all his work in few minutes. He is also appreciated by India's Honorable Prime Minister Narendra Modi for his innovative energy conservation activities. So we are very keen to listen you, sir. Again with a warm welcome over to you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, Dr. Praveen sir, should we start then? Yeah, please, sir. Proceed for your presentation. Okay. Thank you so much. Wow. That's बहुत बढ़िया. Right. Yeah. Okay, very good afternoon to all, and thank you for the wonderful introduction. And I just wanted to make a small correction in the introduction that Madam told me that I'm a gold medalist in environmental science in Nagpur University. No, I'm not. I was gold medalist in my management degrees, but not in environmental science. I was a third merit. Rest all seems okay. So let's start with the discussion today. Sir, I'll make a correction in that.
You are gold medal in environmental management. No issues, madam, no issues. Okay, thank you. So, Dr. Praveen Meshra was my senior in my college by 1 year, and Okay. he is the man who has started the concept of environmental science in academics in Nagpur. So I'm proud to have such a wonderful senior. And he was the first batch of environmental science in Nagpur University, and I was the second batch. So, Okay, and he's sir. a man today, whatever today we are seeing in the environmental science in Nagpur University or in education field, a very huge amount of credit goes to Dr. Praveen Meshra for that. Coming back to the presentation, that in quest of sustainability, at the outset, I would like to ask one very simple question to all of you, that today's presentation, what should be the language of today's presentation? I have three options with me. First one is that we can have the entire presentation in English, or the presentation in Hindi, or we can have the presentation in English, that is Hindi and English combined. So along with me, I am also having my tab, another connection with me. There the chat box is open. So whatever you have in your mind, you can directly, either you can stop me or you can directly write in the chat box. So what should be the mode of communication today? Hindi, English or English? Please guide me for that. बताइए कौन से भाषा में आज की हमारी चर्चा होनी चाहिए? डॉक्टर पल्लवी देशमुख जी ने कहा हिंदी. Hindi, English, English. English, sir. English. नीरव पांडे जी English. English. कानी मोजी जी का कहना है English. I can understand from your name itself that English is the preferred language. But being in India, democratic country, I have to go with the mass. So I will be carrying it in Hindi and English, mostly Hindi. And if you have any specific question, you can directly stop me or ask me for that. तो चलिए आज का हमारा जो चर्चा है, देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं बहुत जगह पे लेक्चर लिया हूं, आज तक करीब 500 से ऊपर मेरे लेक्चर्स हो गए हैं. मगर जब मैं ये यहाँ पे लेक्चर लेता हूँ, जो पहले से मैं ले रहा हूँ काफी सालों से, एकेडमिक स्टाफ कॉल, शायद मेरा 10 साल हो गया होगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा बात अलग होती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने लोग यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, उसमें काफी लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे. और हमारे देश के क्रिकेट में एक बड़ी अजीब सी बात है. वो अजीब सी बात ऐसी है कि हमारे जो प्लेयर्स खेलते हैं, जैसे देख लीजिए आप, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, और इनको जो चयन करता होते हैं वो होते हैं जिन्होंने हार्डली 20 वनडे भी नहीं खेले. अभी तो अगरकर जी हुए हैं, बात अलग है, अदरवाइज. तो जब मैं यहाँ पे लेक्चर लेता हूं ना, तो आप सब प्रोफेसर्स हैं, आप पढ़ाते हैं, ये आपका फील्ड है. तो मैं आपको क्या बताऊंगा? तो मुझे ना थोड़ा सा इंडियन टीम के सिलेक्टर जैसा लगता है कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, जब जो मेरे सामने है वो मेरे से ज्यादा तजुर्बेदार है, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है हर सब्जेक्ट में. आप लोग सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं. सो ये एक लेक्चर नहीं है आज का, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है. मैं पिछले 30 साल का मेरा अनुभव, और आज हमारे देश में पर्यावरण के लिए क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, क्या गलत है, क्या सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आम आदमी पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर सकता है. What a common man can contribute for the environment protection and sustainable development. That is most important. तो इसके ऊपर में हम आज डिस्कशन करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक मूवी का पोस्टर दिखाना चाहता हूं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी. इसमें अक्षय कुमार जी जो हैं, ये एक पक्षियों के त्राणकर्ता थे, पक्षियों के बारे में सोचते थे, और उनको लगता था ऐसा कि
जो मोबाइल टावर से उसमें से जो तरंगे निकलती हैं उसके कारण पक्षियों की मौत हो रही। एज एन एक्टिविस्ट उन्होंने बहुत लोगों को बताया, बहुत कुछ करने की कोशिश किया, कोई नहीं सुने। बाद में उन्होंने आत्महत्या करी और बाद में वो वापस आए एज ए पक्षी राजन। और जब पक्षी राजन बन के आए तो लोगों के हाथों से मोबाइल छीन लिए कुछ चंद लम्हों के लिए, और जिंदगी रुक गई। इस पोस्टर में सबसे नीचे में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। वी आर ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम। बट आज हम अपने आप को इतना बड़ा समझ चुके हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड को चैलेंज कर रहे हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचित इस संसार को, इस ब्रह्मांड को हम प्रश्न चिन्ह के सामने खड़े कर दिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मानव प्रजाति जो है वो सबसे उत्कृष्ट प्रजाति, हम कुछ भी कर सकते, पर ऐसा नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा आज जो एग्जाम्पल था वो था कोविड-19। एक वायरस ने हमें घर के अंदर बंद कर दिया था, त्राहिमाम मच गया था एक वायरस। मैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हम इस इकोसिस्टम के एक बहुत छोटे से पार्ट हैं। जरा सोचिए, जिस तरह से पक्षी राजन आए थे, हम जिस तरह से पेड़ों का कत्ल कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, रास्ते बना रहे, घर बना रहे। अभी मैं आ रहा हूं 1.5 घंटे पहले नागपुर शहर में सिविल लाइंस में सेंट उर्सुला स्कूल है, उसके सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ धराशायी हो गया। वहां मैं गया तो मैंने पाया कि वहां पे सीमेंट रोड बन रहा है, बाजू में एक ट्रेंच बन रहा है, और वो ट्रेंच बनने के कारण वहां पे पेड़ों के जड़ों को काट दिया गया संपूर्ण रूप से। हम सीमेंटीकरण कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, और विकास की बलि ये पेड़ चढ़ रहा है। तो सोचिए 2 मिनट के लिए, पक्षी राजन की तरह किसी दिन अगर सवेरे हम उठते हैं और हम देखते हैं कि वृक्ष राजन आ गए, और वृक्ष राजन कहते हैं अपने सभी वृक्षों को कि ये मानव प्रजाति हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ पल के लिए इन्हें ऑक्सीजन देना बंद कर, तो शायद हम सरवाइव भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम इस पूरे इकोसिस्टम के बहुत छोटे से पार्ट है। द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हर प्रजाति को जीने का उतना ही हक है जितना हक हमें है और आपको है। गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सिद्धम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपको लगता है कि अब भगवान वापस आएंगे हमें पर्यावरण, इस प्रदूषण से बचाने के लिए? मुझे नहीं लगता है। इसलिए ये जो है, ये दीवारों पे अच्छे लगते हैं, इनकी स्तुति की जाए, इनकी आराधना की जाए, इनको पुष्प अर्पण किया जाए, इनसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना किया जाए। मगर ये उम्मीद करना कि फिर से कृष्ण आएंगे, फिर से जीसस आएंगे, फिर से बुद्ध आएंगे या गुरु नानक आएंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए। फिर आज हमारे चारों तरफ में जो प्रदूषण का, पॉल्यूशन का एक मायाजाल बिछ गया है, इससे हमें कौन बचाएगा? अगर ये महामानव आज अवतरित नहीं होंगे तो हमें कौन बचाएगा? हमें ये बचाएंगे, कॉमन मैन। कोई आएगा नहीं, nobody will come, no, the common man will save the human race. कॉमन मैन अर्थात मैं और आप। आज के मेरे इस चिंतन मंथन के इस विषय का, आज जो हम चर्चा करेंगे 1 घंटा, इसका मूल विषय यही है कि हम कहां खड़े हैं, आज वास्तविकता क्या है, आज की यथार्थ क्या है, और कॉमन मैन क्या कर सकता है, हम और आप क्या कर सकते हैं इस पृथ्वी को इस प्रदूषण रूपी दानव से मुक्ति दिलाने के लिए। शुरू करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एयर पोल्यूशन और उसके कुछ तथ्य है आपके सामने। 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air। 9 में से 10 लोग
प्रदूषित हवा का सेवन कर रहे हैं और इसके कारण हर साल 7 मिलियन लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो रही है। 4.2 मिलियन डेथ एवरी ईयर ड्यू टू एक्सपोजर टू एम्बिएंट आउटडोर एयर पोल्यूशन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। तो जिस प्रक्रिया को लेके आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, जरा उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि आज विश्व का जो औसत टेम्परेचर है वो पिछले 100 साल में करीब 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो इसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को बड़े सुंदर और सीधे तरीके से। आपके स्क्रीन में सूर्य देवता है और पृथ्वी है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी से टकरा के आउटर स्पेस में निकल जाना चाहिए, मगर ये जो ब्लू कलर का लेयर आपको दिख रहा है ये प्रदूषण का लेयर, ये मैन मेड एक्टिविटीज है जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर में एक प्रदूषण का लेयर छा गया है, जिसके कारण सूरज की रोशनी आके पृथ्वी से टकरा तो रही है मगर वापस नहीं जा पा रही, या तो टकराने के बाद फिर से रिडायरेक्ट पृथ्वी पे हो रही है या अब्सॉर्ब हो जा रही है इस प्रदूषण के लेयर पे और बाहर नहीं जा पा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। और आज पिछले 100 सालों में, 120 सालों में करीब 1.1 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ गया है और आज पूरे विश्व में कवायदे चल रही है कि इसे हम 1.5 या मैक्सिमम 2 डिग्री पे रोकने का प्रयास करें, नहीं तो भला भयंकर प्रलय है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि रामदासपेट में बारिश हो रही है और भांडेवाड़ी में नहीं हो रही है, जलवायु परिवर्तन है। ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पिछले साल बारिश नहीं हो रही थी, इस साल बारिश हो रही है अप्रैल के महीने में, देखो जलवायु परिवर्तन है, ऐसा भी नहीं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज सदियों में आता है, काफी सालों में आता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में, जिनके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने अमीरी और गरीबी को समझाने के लिए एक पोएम, एक कविता में लिखे हैं। उन्होंने चेरापूंजी, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हे चेरापूंजी, तुम थोड़े से बादल उधार दे सकते हो क्या मरु सहारा को, जहां पे बारिश नहीं होती है। वो बारिश अमीरी और गरीबी के बीच के फासले को नापने के लिए कवि की रचना थी वो। पर आज अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी वापस आते हैं तो वो चौंक जाएंगे, क्योंकि आज चेरापूंजी में बारिश कम हो गई है और सहारा मरुस्थल में बारिश चालू हो गई। ये क्लाइमेट चेंज। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, उससे इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो आइस कैप्स है, जो बर्फ की शिलाएं हैं, वो पिघल रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका पानी समुद्र में जा रहा है और समुद्र का लेयर ऊपर आ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2070 तक पूरे विश्व में ऐसे बहुत से देश, ऐसे बहुत से शहर जो समुद्र के तट पे हैं, उसके अधिकांश पोर्शन समुद्र के अंदर जाने की संभावना है। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण जो समुद्र का लेयर ऊपर आ रहा है, जो जल स्तर ऊपर आ रहा है, ये एक भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकती है आने वाले दिनों में। इंटेंस ड्राउट, भयंकर सूखा पड़ रहा है। जो भी हो रहा है आज भयंकर हो रहा है। स्टॉर्म्स, आप देखिए, अगर आप भारत वर्ष के मानचित्र को विजुअलाइज करेंगे तो हमारे नीचे में जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण के दोनों तरफ में अगर आप देखेंगे
तो एक तरफ में अरब सागर है, एक तरफ में बंगाल की खाड़ी है। अब खुद देखिए कि आज से 30 years back, what was the ratio of cyclonic storms? Hardly there were any cyclonic storms, or if at all they were coming, 1 or 2 were severe and rest all are okay. But now, what is the today's scenario? Every 15 days, there is a cyclonic storm coming. And this is another hopeless bad impact of climate change. The heat waves are coming. Heat waves are getting generated on a larger way. Our oceans are getting warm. And once the oceans are getting warm, it is impacting directly the aquatic ecosystem. The change in precipitation rains. जैसा मैंने कहा, बारिश के पैटर्न्स बदल रहे हैं। जहां बारिश होती थी वहां कम हो रहा है, जहां नहीं होती थी वहां हो रहा है। क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। हम अक्सर पेपर में पढ़ते रहते हैं, हमारे देश में भी उत्तरांचल में अक्सर ये घटनाएं दुर्घटनाएं घटते रहती है। ग्लेशियर लेक्स के आउटबर्स्ट हो रहे हैं। तो these are the things which are happening due to the impact of climate change. और ये आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज बना हुआ है, जिसके लिए पूरे विश्व में चिंतन मंथन चल रहा है। ये कुछ आपके सामने है। 1995 से लेके if we go to 2020, the sea height has from increased by 100 mm and 3.3 millimeter per year. The water surface of the sea is coming up. If we focus on what are the sources of pollution, who are the responsible, who is responsible for pollution, which sector? So we will find the maximum is the electricity and the heat production. ये जो thermal power plants है, they are the major contributors. They contribute around 25% of the total pollution which is getting generated. इसके बाद agriculture, forestry and other land use, 24%. Then comes industry, 21%. And then transportation, 14%. This is a global scenario. तो ये sectors हैं जो सबसे ज्यादा आज एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। और अगर हम देश की बात करें, which country is responsible? We can find the global CO2 emission from fossil fuel combustion and industrial process. The maximum is being done by China, 30%, United States, 15%, European Union, 28%, that is 28 countries together, the 9%, and then comes India, 7%. So this is very important, ladies and gentlemen, because we are also a very key player. हम पूरे विश्व में चौथे या पांचवें पायदान पे खड़े प्रदूषण करने में। तो हम क्या करेंगे, इसके तरफ पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। हम बोलने के लिए ये बोल देते हैं, जो चाइना भी बोलता है, कि हमारा पर कैपिटा पोल्यूशन इज वेरी लेस। ऑफ कोर्स हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। आप कितना भी ऊपर रख लो, डिनोमिनेटर पे जब 135 करोड़ आएगा तो उसका रिजल्ट तो फ्रैक्शन में ही आएगा बंधु। बट द फैक्ट रिमेन्स, from the total pollution, air pollution which is happening across the globe, India is contributing to about 7%, Russia 5%, and Japan 2%. And all other countries together, they are making only 30%. But the main problem is single 30% in China. And this is the point of worry. किसी की सुनते भी नहीं। So now, इन सबको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सबको रोकने के लिए there has been a series of conferences, series of meetings. Kyoto Protocol was in place, but Kyoto Protocol was over in 2012. After that, बहुत सारे meetings हुए, बहुत सारे
discussions हुए, but nothing, nobody came on the same platform. There has been Cancun conference, there has been Copenhagen conference, which media named it as a Floppenhagen conference. And there is a separate, clear-cut demarcation of developing country and developed country. Developing country were represented by China, India, Brazil, and South Africa. And there are developed countries. Always there has been rules different for developed and developing countries. Finally, under the Paris Agreement, 194 countries came together to find out a way to restrict this global warming and climate change. So we will be going in details of Paris Agreement. इसके पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूं. I would like to have a feedback from you all कि हम जो आज बात कर रहे हैं हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आवाज से नहीं, आपके दिल और दिमाग में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं. जिस तरह से हम जो बात चर्चा कर रहे हैं ये आपको ठीक लग रहा है या इसमें कोई परिवर्तन करना है? No, sir. मुझे ऐसा लगता है कि It's very interesting and we are enjoying it. Very interesting, sir. Very interesting. थैंक यू सो मच मैडम. क्या है मैडम, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे नीरी के साइंटिस्ट सब बड़े बड़े पढ़ाने आते थे. मैं एमएससी में था, मेरा लेवल यहाँ था, साइंटिस्ट का लेवल यहाँ था, और वो इसके और ऊपर पढ़ा के चले जाते थे. मैं बाजू वाले को पूछता था साहब क्या बोल के गए. सो मुझे लगता है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो सामने वाले के दिल पे आपको पहुंचना है, दिमाग में बाद में. प्रवीण मेश्राम साहब ने लिखा कि थोड़ा इंग्लिश में भी बात करनी है. 2-3 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु. आई एम वेरी सॉरी बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु दे कैन ऑलवेज स्टॉप मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस. आई एम ऑलवेज देयर, बट आई एम गोइंग विद द मेजॉरिटी. थोड़ा सा Dr. Neerav Pandya, we met second time. Oh, really? We met second time in the same platform. Wow, great, sir. Thank you. So, मेरे ख्याल से दशा दिशा ठीक है. पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. Great. आगे बढ़ते हैं. ठीक चल रहा है. पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट डॉक्टर पल्लवी देशमुख बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं. देखिए वही कोशिश है. जैसे पल्लवी देशमुख मैडम है, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैडम? होम इकोनॉमिक्स सर. होम इकोनॉमिक्स. अब आप मेरे को बताइए कि अगर आप मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में एक लेक्चर ले रही हैं और सामने मैं बैठा हूँ, तो आपको इकोनॉमिक को सरल लैंग्वेज में मेरे को समझाना पड़ेगा ना. हाँ सर, वही. आप अगर आपके सब्जेक्ट के बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, नहीं मैं मानता हूं ना आप बहुत ज्ञानी है, आप प्रबल ज्ञानी है, बट मुझे जब आप बता रहे हो तो मेरे लेवल पे आके थोड़ा अपना सब्जेक्ट बताइए. तो ये थोड़ा सा ना मिस हो जाता है काफी बार. और मैं पहले ही आपको बोला हूं कि मैं ऐसा कोई बहुत विद्वान व्यक्ति बहुत आता है ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने इस फील्ड में 30 साल से काम किया. एक आदमी अगर 30 साल से एक ही काम करेगा तो वो उस काम का एक्सपर्ट हो जाएगा. कोई भी हो, गधा भी हो जाएगा, तो हम भी होगा. उसमें क्या 30 साल से एक पर्यावरण के सिवा कुछ आता नहीं है. पर्यावरण के सिवा अगर थोड़ा बहुत कुछ आता है तो क्रिकेट के ग्राउंड में जाके चिल्लाना आता है, बस खेलना नहीं आता. बस चिल्लाना आता है इंडिया के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जिसके सिवा कुछ आता नहीं है. पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में अडॉप्ट किया गया, टेबल हुआ 2016 में. 194 देशों ने. थैंक यू सो मच मैडम, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे ये कमेंट. सुपर्णा मैडम का दिल से दिमाग की ओर ले जाने वाला. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच. सो 194 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए और ये रैटिफाई हुआ 2016 में. इंडिया ने रैटिफाई किया 2016 में, and it came into force from 4th November 2016.
अब पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बहुत सिंपल है, वन लाइनर है कि भैया पिछले 100 साल में जो आपका टेम्परेचर 1.1 बढ़ गया, इसको 1.5 पे रोको, और अगर 1.5 पे नहीं रोक सकते हो तो कम से कम 2 डिग्री पे रोको। अगर 2 डिग्री के ऊपर चला गया तो प्रलय आ जाएगी। व्हाट इज द एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? देयर इज वन सिंपल लाइनर एम। फॉर लास्ट 120 years the global temperature has gone up by 1.1 degree centigrade. All 194 countries came together to find out a solution at a micro level so that this temperature rise can be restricted to 1.5 degrees Celsius, or if not at 1.5 degrees Celsius, at least at 2 degrees Celsius. Because if it goes beyond 2 degrees, the rise is beyond 2 degrees, then it will be extremely difficult to survive in this world. So coming to the Paris Agreement, and there was a big loophole in क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल में एक बहुत बड़ी खामियां थी। वो खामी ये थी कि क्वेटो प्रोटोकॉल ने भी बहुत सारे देशों ने साइन कर दिए, मगर बाद में देखा गया कि ये वो देशों ने साइन किए हैं जो तो प्रदूषण ज्यादा करते ही नहीं। तो जो बड़े खिलाड़ी थे वो तो बाहर रह गए। सबसे बड़ा खिलाड़ी जो क्वेटो प्रोटोकॉल से बाहर रहा वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साइन नहीं किया। बड़े भैया ने सबको डांट डपट के साइन करवाया, साइन कर, प्रदूषण हो रहा है, पृथ्वी को तकलीफ हो रही है, पर खुद ने साइन नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेवर साइन क्वेटो प्रोटोकॉल, बट दे फोर्स्ड ऑल small countries to sign the Kyoto Protocol. So in this case, Paris Agreement, the basic condition was जब तक 55% प्रदूषण करने वाले देश हस्ताक्षर नहीं करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। Unless 55% world emission is ratified, Paris Agreement will not come in force. So now all major countries, they signed. And interesting is, third point पे गौर करिएगा, United States of America ratified the agreement on 3rd September 2019. However, on 4th November 2019, just in 2 months, government of United States of America notified that we are going out of Paris Agreement. ले हलवा 2 महीने के अंदर उन्होंने बोल दिया कि हम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं। Now the most important thing, गौर करिएगा, environment was one of the key factor in deciding the president of United States of America. Honorable Donald Trump, he went out of Paris Agreement because his main concern was economy. हमने कोविड के समय भी देखा है कि ट्रम्प साहब तो लॉकडाउन करेंगे ही नहीं, उनको सिर्फ इकोनॉमी चाहिए। अब अमेरिका क्यों बाहर चला गया पेरिस एग्रीमेंट से? कारण, अगर आप पेरिस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करोगे तो आपको अपने प्रदूषण की मात्रा में कमी लानी पड़ेगी, और अगर कमी लानी पड़ेगी तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करना पड़ेगा, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करना पड़ेगा करोगे तो आपके देश की आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम होगा, और अगर आपके देश आपकी आर्थिक स्थिति हिल जाएगी, फिर आप विश्व के मानचित्र में से इराक जैसे देश को नेस्तनाबूद कैसे करोगे? सो डोनाल्ड ट्रंप पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हुए, मगर जो बिडेन ने अपने जो पॉइंट्स रखे थे उसमें यह था कि अगर मुझे आप चुन के लाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, मैं तुरंत पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाऊंगा। और खुशी की बात है कि जीतने के बाद तुरंत जो बिडेन पेरिस एग्रीमेंट में वापस गए, एंड नाउ अमेरिका इज ए एक्टिव मेंबर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। गौर करें,
ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बन गया है। विदेशों में ऐसे मुद्दे बनते हैं और हमारे यहाँ पे थोड़े अलग मुद्दे बनते हैं। ये मुद्दों की बात है, ये पार्टी की बात है, ये देश की बात है। तो भारत ने क्या प्रॉमिस किया पेरिस एग्रीमेंट? गौर करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2016 में जब भारत पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर रहे थे, तो भारत ने कहा कि 2030 तक हम 2005 में जितना प्रदूषण करते थे उससे भी 35% कम करेंगे। चौंकाने वाला डिसीजन था कि भाई आप एक डेवलपिंग कंट्री है, यू आर स्टैंडिंग इन 2016, you are a developing country, so by 2030 you will have more industrialization, you will have more emissions. How you are saying कि 2030 तक आप 2005 में जो करते थे उससे भी 35% कम करेंगे? Here comes the second commitment of India, कि at least 40% of the power, national power, we will convert it to renewable source of energy, not the thermal power, not the fossil fuel power. By doing this, we will control our carbon emission 2030 तक, कि 2005 में जो करते थे उससे भी 35% कम। इसके सिवा हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। 2.5 to 3 billion tons of adding forest tree covers हम बनाएंगे। तो क्या भारत ने किया? आज हम 2023 में खड़े। हो सकता है 10वें वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या। 2014 के बाद भारत सरकार वाकई में पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफी हद तक सचेत हुई है। और आज मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं एक भारतीय हूं, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं और हमारा देश, हमारी सरकार पेरिस एग्रीमेंट के प्रति प्रयत्नशील है। हमारे देश ने फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, जो 69.8% ऊर्जा जनरेट करता था देश का, वो घट के 63.5 हुआ है। सोलर पावर कैपेसिटी 1.5 से 7.4% पे गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट आपके सामने है, ये तीसरा पॉइंट हमें खुशी भी देता है और हमें गम भी देता है कि 2014 में हमारी सोलर पावर कैपेसिटी जो 2.63 गीगावाट था, वो 2020 तक 36 गीगावाट हो गया। Solar power capacity of our country, which was 2.63 gigawatt only till 2014, it has gone up to 36 gigawatt in 2020. This line generates happiness as well as sorrow. Happiness because see what great we are doing, man. In last 6 years, we have jumped from 2.63 to 36 gigawatt. Wow, super. But the other angle of the story is 2014 तक सो रहे थे क्या भाऊ? जब सब लोग जाग रहे थे, सब लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ भाग रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे भाई? सो रहे थे 2014 तक, 2.63 गीगावाट लेके बैठे हो। और जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत सोलर एनर्जी के लिए तो एकदम फिट बैठा है। उसके बाद भी आप 2014 तक 2.63 गीगावाट पे बैठे हुए थे, ये चिंताजनक है। और भारत अभी कह रहा है कि हम बहुत जल्दी इसको और आगे लेंगे। ये देखिए कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने क्या कहा था कि 2030 तक 2005 में हम जितना प्रदूषण करते थे उससे 35% कम कर देंगे। 2005 में जो करते थे उससे भी कम करेंगे भैया। बट आज अगर आप देखेंगे 2023 में,
तो ऑलरेडी हम 21% कम कर दिए भैया। 35 का वादा था, 7 साल बचे, और 21% ऑलरेडी कम कर दिए। और दूसरा वही 2.63 गीगावाट से 36 गीगावाट तक पहुंच गए भैया, जंप जबरदस्त लगाया। और आज विश्व में अगर हम बोलते हैं विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी, विंड में 4th और सोलार में 5th पोजीशन पूरे विश्व में आज भारतवर्ष पहुंच चुका है। अर्थात जो वादे हमने किए थे, काफी हद तक हम वो वादे निभा रहे हैं। अब भारत खुद सुमोटो, भारत खुद प्रोएक्टिव होके अपने वादे को रिवाइज कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 21% तो हम अचीव कर चुके हैं। हमारे पास 7 साल बचा है भाई, और अगर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, अब भारत बोल रहा है कि 2030 तक 2005 में जो प्रदूषण हो रहा था उससे 35% नहीं, 46 से 48% हम कम करेंगे। इंडिया इज रिवाइजिंग सुमोटो। Nobody has asked India to revise their own targets. By 2030, what we were doing in 2005, not only 35%, 36%, but we will bring down our carbon emission by 48%. And not 40% of the energy will be in renewable energy, but 60% to 65% energy will be in renewable energy by 2030. And the total focus is to build up 450 gigawatt renewable energy, जिसका majority will be the solar energy. So ये मैं बोल रहा हूं, of course मैं तो बोलूंगा, I am an Indian, I am a proud Indian, मैं तो बोलूंगा मेरा देश महान। अगर हमारी टीम हारती है तो भी मैं बोलता हूं मेरा देश महान। अगर हम हार जाते हैं तो बोलते सामने वाले चुट्टे हैं, अंपायर बेवकूफ है, उसने हमारे विराट कोहली को गलत आउट दिया, नहीं तो हम जीत जाते, जबकि हम 100 रन से हारे। तो भाई कोई बोल सकता है ये आदमी तो अंधा है अपने देश के बारे में, ये तो अच्छा बोलते रहता है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है। ये देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये कौन सा देश क्या परफॉर्म कर रहा है, ये उसके ऊपर में है। आपको भी गर्व होगा जनाब जब आप 8वें नंबर पे भारतवर्ष को देखोगे। तो पिछले साल से इस साल में 2 पोस्ट का छलांग लगा के हम 8वें पोजीशन पे आ गए, और पहले के 3 आपको खाली दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कोई पहले 3 में रहने योग्य कोई भी देश नहीं है जिसने इतनी ज्यादा मेहनत की हो कि ये जो टेम्परेचर 1.1 डिग्री से बढ़ रहा है उसको 1.5 पे रोकने की कोशिश करी है। जितने सब 2 डिग्री पे रोकने वाले लोग हैं कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं इससे 2 डिग्री पे रुकेगा, 1.5 पे नहीं रुकेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज which countries are above us? डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को, बस वर्चुअली अगर देखा जाए तो वी आर एट नंबर 5 मैन, वी आर एट नंबर 5 in climate change performance index. A developing country who is struggling with 135 crore population, who is fighting with so many things, जो अंदरूनी में लड़ाइयां लड़ रहा है, जो अपने पड़ोसियों के दबाव में लड़ाइयां लड़ रहा है, जहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जहां सरकार को स्थिर नहीं होने दिया जाता है, वो देश पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व में 5वें पायदान पे खड़ा है अपने कर्तव्य निभाने के लिए। गर्वित हूं मैं। कोई बड़ा देश नहीं है सर आगे, आप देख लीजिए। बाकी जो चिल्लर चपाटे हैं वो करते ही क्या है, वो करेंगे क्या? अगर कोई बड़ा देश हमारे बाद दिख रहा है तो सीधा यूनाइटेड किंगडम 11 पे, जो 4 पायदान नीचे आ गए। हमने आज चर्चा करी ग्लोबल वार्मिंग की, हमने चर्चा करी क्लाइमेट चेंज की, हमने चर्चा करी पेरिस एग्रीमेंट की, हमने चर्चा करी
भारत के वादे पेरिस एग्रीमेंट में, हमने चर्चा करी यूनाइटेड नेशंस के वादे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वादे पेरिस एग्रीमेंट में। और आगे देखते हैं सर, देखिए इस साल का बजट पे चलिए नजर डालते हैं। देश का बजट 3030 करोड़, 3030 करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़। नेट जीरो गोल को अचीव करने के लिए, मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब पहले बोले थे हम 2050 में अचीव करेंगे, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, हम 2070 में करेंगे। उसके लिए 35,000 करोड़, 2,908 करोड़ फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्रोजेक्ट टाइगर्स 300 करोड़, रिन्यूएबल एनर्जी 6,900 करोड़। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सब पढ़े लिखे। आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, 15 साल पहले किसी भी यूनियन बजट में पर्यावरण के लिए इतना बड़ा एलोकेशन हमने देखा नहीं। अब हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे सरकार में हजारों खामियां होंगी, हमारे देश में हजारों खामियां होंगी, हम में हजारों खामियां होंगी, मगर हम ना वो लोग हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं सर। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है, द्रोणाचार्य हमारे गुरु है, अर्जुन जैसे योद्धा हमने पैदा किए, हम अपने वादे निभाते हैं। तो आज भी हम अपने वादे निभा रहे हैं। और यही जो मैं आज आपको बोल रहा हूं, यूनियन बजट के बाद सारे न्यूज़पेपर में मैं बहुत वोकल था, मेरे टीम के लोग वोकल थे। और आप आज देखिए कि ये कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स आप देख रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मेरा एक आम आदमी का फोटो छपा, क्योंकि पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ पर्यावरण पे बोला, बाकी लोग पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, आप कुछ भी करिए, सरकार कुछ भी करे, विपक्ष बुरा बोलेगा, हर साल बोलता है। पर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पर्यावरण के मामले में ये सरकार, अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो ऑन पेपर एटलीस्ट काफी कार्यरत है। हम अगर ये हम बोल रहे हैं कि सरकार कर रहा है, तो हमें और थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि सरकार इनिशिएटिव क्या ले रहा है। ये जो एयर क्वालिटी जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे, व्हाट आर द इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग। So due to time constraint, I cannot discuss all the initiatives, but I'll definitely list down. I've listed down some initiatives of Government of India and our own Government of Maharashtra. सबसे पहले, for the air pollution part, Government of India started National Clean Air Program. What is National Clean Air Program? Central government launched National Clean Air Program as a long-term, time-bound, national level strategy to tackle air pollution. एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए लॉन्ग टर्म, टाइम बाउंड प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया। टारगेट क्या है भाई? टारगेट है 20 to 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। 2014 और 2024 में 2019 के पोल्यूशन का बेस मान के सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी कामयाबी या नाकामयाबी जजमेंट किया जाएगा 2024 में परफॉर्मेंस। किससे कंपेयर करोगे? 2019 के साथ। एंड इट इंक्लूड्स सिटी स्पेसिफिक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। हर सिटी का अलग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान हो। आपको हम बता दें कि भारतवर्ष में 102 ऐसे शहर हैं
जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है, अर्थात जिसमें वायु प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है। और बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और 20 शहर इसमें जोड़ दिए। तो अफसोस 135 करोड़ जनता वाले इस देश में 122 ऐसे शहर हैं जहां प्रदूषण की मात्रा, वायु प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है, जिसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम दूसरा, सरकार ने एक 703 मैनुअल ऑपरेटिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए 307 शहरों में, जिसमें 4 पैरामीटर्स किए जाएंगे, SO2, NO2, पार्टिकुलर मैटर 10 एंड पार्टिकुलर मैटर 2.5। इसके सिवा 134 रियल टाइम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं 71 सिटीज में, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, PM10, PM2.5, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, ये लगाया जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे मेचराम साहब ने हमें 4 बजे खत्म करने के लिए बोला था, पर वो आप कह रहे हैं कि एंजॉयिंग योर स्टाइलिश एंड इंफॉर्मेटिव पीपीटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। तो ये 2 नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स हैं, और इसी के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो ऑब्जेक्टिव है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, पहले समझना तो पड़ेगा ना भाई बीमारी क्या है। डॉक्टर साहब दवाई दे दो, अरे भाई तेरी बीमारी क्या है? सर दर्द है, पेट दर्द है, घुटने में दर्द है, बुखार चढ़ा है, कोविड हुआ है, क्या हुआ है? तो वो जानने के लिए एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ये स्टेशंस बताएंगे कि आपके मौजूदा हालात में ये जो पैरामीटर्स मैंने पहले बताए, वो पैरामीटर्स की मात्रा क्या है, वो तय करेगा कि क्या आपका शहर प्रदूषित शहरों में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। 122 शहरों को प्रदूषित शहरों में गिना गया है। उसके ऊपर चिंतन मंथन करके डिसाइड होगा कि इस शहर के लिए क्लीन एयर प्रोग्राम क्या हो, इस शहर के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा जिससे यहां का एयर पोल्यूशन कम हो। अब सरकार ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी डिफाइन किए। हमने मानेंगे भैया हम प्रदूषित है, ऐसा कैसे हम मान लें प्रदूषित? तो इसके लिए भैया स्टैंडर्ड है, अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर हो तो भैया तुम प्रदूषित हो, अगर स्टैंडर्ड के नीचे हो तो भैया तुम अच्छे हो। मुजोरी करने से थोड़ी चलेगा। तो उसके लिए सरकार ने ये चार्ट डिफाइन कर दिया कि भैया उसमें 2 तरह के, एक एनुअल, एक 24 आवर्स। सल्फर डाइऑक्साइड अगर इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल एरिया में 50 मिलीग्राम पर लीटर के ऊपर एनुअल एवरेज नहीं होना चाहिए। 50 के ऊपर गए तो तुम प्रदूषित हो, और अगर 24 घंटे का एक रैंडम कर रहे हैं तो 80 तक अलाउड है। उसी तरह से हर पैरामीटर को डिफाइन कर दिया है। इसके बाद सरकार ने एयर क्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे आम आदमी जान सके कि भैया मैं कहां खड़ा हूं भाई। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के लिए हम लोग देखेंगे सर, हम लोग देखते होंगे कि शहरों में बड़े बड़े चौक में ऊपर में डिजिटल लिखा रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलर मैटर 10, पार्टिकुलर मैटर 2.5, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, इन सब का निचोड़ मिला के बताया जाता है कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका शहर का कैसा है। 2015 में सरकार ने ये शुरू किया। जो 14 शहर में शुरू हुआ था, आज 71 शहरों में ये फैल चुका। नागपुर में भी है। आप काफी जगह जाओगे तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी चौक में आपको दिखेगा। बारिश के दिनों में थोड़ा अच्छा रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये है उसका मापदंड। अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 में है तो बहुत अच्छा, 51 से 100 है तो थोड़ा सी तकलीफ हो सकती है, पर ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है। मॉडरेट है 101 से 200,
और पुअर है 201 से 300, उसके ऊपर वेरी पुअर, उसके ऊपर सीवियर। जैसे कि दिवाली के समय, न्यू ईयर के समय हमारी राजधानी दिल्ली सीवियर की मात्रा में रहती। दिवाली न्यू ईयर में हमारा शहर नागपुर पुअर में आ जाता है। पटाखे उठाके फोड़ते हैं, धुआं हुआ निकलता है, तो क्या है, ये छिड़क है, 2 दिन की बात है, तो झेल ले भाई। ऐसा ही होता है इंडिया में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, 2 दिन ठीक है। यहीं पे अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है आपके चारों तरफ है जहां से 365 दिन प्रदूषण आ रहा है, तो चिंता की बात है। अब पटाखे उठा के देखिए सर, ऐसा है कि पर्यावरण के बारे में हम काम करते हैं, पर्यावरण के साथ है, मगर अपनी आस्था भी कुछ हद तक अपने पास है। अब यार 2 दिन तो पटाखे फोड़ रहे हैं यार, उसमें भी तो जाके अड़ंगे डाल रहे हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, एयर क्वालिटी खराब होगा, आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए, आइए, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको हम मना कर रहे हैं। नहीं समझना चाहते मत समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, 2-3 दिन की बात है। पर यही अगर आपके बाजू में कोई, जैसे नागपुर में कोराडी थर्मल पावर प्लांट है, खापड़खेड़ा थर्मल पावर प्लांट है, कभी जाइए, आसपास में थोड़ा घूमिए, आपके पेड़ों के पत्ते सफेद दिखेंगे। वहां पे थर्मल पावर प्लांट से जो डस्ट निकलता है वो भारी मात्रा में PM10 PM2.5 को कंट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण होपलेस एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। आज अगर हम नागपुर शहर की बात करें तो जो बाकी पैरामीटर्स हम यहाँ देख रहे हैं, SO2 NOx, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा नहीं है आज के दिन, क्योंकि नागपुर के चारों तरफ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। आप जो मैं बोल रहा हूं ये आप महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना है तो आप CPCB के वेबसाइट पे जाके हर शहर का देख सकते हैं। हमारे लिए, नागपुर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है PM10 एंड PM2.5, छोटे छोटे धूल कण, ये हर बार हमारे लिमिट्स के बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने के कारण हमें एक प्रदूषित शहर में लाके खड़ा कर देते हैं। दुर्भाग्यवश जो 122 शहर है उसमें हमारे अपने प्रियतम महाराष्ट्र के 17 शहर, आपके समक्ष वो शहरों के नाम, सारे बड़े बड़े शहर तो आ गए, 2-4 छोटे शहर भी आ गए, अनफॉर्चुनेटली। और देखिए, महाराष्ट्र एक विकसित प्रदेश है, काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां प्रदूषण ज्यादा होगा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नौकरियां ज्यादा मिलेगी, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बेटर होगा, जो लोग गरीब थे वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, मिडिल क्लास शायद अपर क्लास में चले जाए। मगर हर चीज एक कीमत के साथ आती है जनाब, और ये कीमत प्रदूषण का हमको चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारे लिए किताबों में है। हम पेड़ काट देते हैं पर हम कंपेंसेटरी प्लांटेशन नहीं करते, हम पेड़ लगाते नहीं। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता हम नहीं लगाते? सीधी सी बात, हर शहर का एक ट्री कमेटी होता है। नागपुर के ट्री कमेटी में 5 सदस्य में मैं भी हूं। नागपुर में कानून ये बोलता है कि अगर आपको कोई पेड़ काटना है तो आपको एक पेड़ के लिए 5,000 रुपए जमा करने, और आपको 5 पेड़ लगाने, और वो पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो वो लाके फोटोज हमको दिखाने, हमारा आदमी आएगा देखेगा, और आपके 5,000 रुपए आपको मिल जाएंगे एक पेड़ के लिए। यकीन मानिए, नागपुर महानगर पालिका में ओनली 3% लोग अपने डिपॉजिट वापस लेने आए, बाकी लोग आए ही नहीं, क्योंकि किसी ने लगाया ही नहीं, और लगाया भी है तो मन बरमुरा गया। और ये व्यक्ति विशेष की आदत है, और वही आदत
हमारे जो सरकारी जो कंपनियां हैं उनकी भी वही आदत, उस पे आ रहे हो। ये नंबर ऑफ सिटीज इन ईच स्टेट, कौन से शहर में कितने, उत्तर प्रदेश में 15 है नॉन अटेनमेंट, छत्तीसगढ़ में 3, तमिलनाडु में 1, महाराष्ट्र इज अ मेजर प्लेयर, महाराष्ट्र में 17 अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल में ओनली 1। और ये जो डेटा आपके सामने है, मुझे पर्सनली, देखिए मैं सरकार को तो चैलेंज नहीं कर सकता हूं, मैं अपने तजुर्बे से बोल सकता हूं कि ये ना डेटा ठीक नहीं है। अब आप ही बताइए कि जब कोविड चल रहा था स्टार्टिंग में, डरावना कोविड, हम हर व्यक्ति हर दिन सुबह उठ के देखते थे कितने पेशेंट ज्यादा हुए, तो सबसे ज्यादा केरला के बाद महाराष्ट्र। तो वो शायद इसलिए था कि हम फेयर प्ले खेल रहे थे, हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रहा था, हमारे यहाँ पॉजिटिव निकल रहे थे और हम ये मान रहे थे। हमारे वेस्ट बंगाल में तो ऐसा लग रहा था कि कोविड को भी वेस्ट बंगाल में घुसने के लिए ममता जी का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर दीदी बोलेगी तो कोविड आएगा, नहीं तो कोविड नहीं आएगा। आप सबको याद होगा कि कोविड के तीसरे वेव जब दरवाजा खटखटा रहा है, पूरे देश में परेशानी हो रही है, तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, एकदम कोविड को एंट्री नहीं है भाई, इलेक्शन हो रहा है, तृणमूल को जीतता है। जैसे इलेक्शन हो गया तृणमूल जीत गया, 3 दिन विजय उत्सव हो गया, उसके बाद एकदम से लॉकडाउन। क्यों? अरे कोविड हो गया भाई। तो उसी तरह से मुझे यहां भी लगता है कि मैं तो कलकत्ते का हूं ना, तो कलकत्ते में तो जाते आते रहते। अगर हमारे महाराष्ट्र में 17 शहर प्रदूषित है, तो कोलकाता में कम से कम 10 से 12 शहर तो प्रदूषित होना ही चाहिए, जो इस लिस्ट में नहीं दिखा। तो आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग बहुत सारे जगहों में घूमते रहते हैं, और आप बताइए, चलिए कोलकाता छोड़िए, बिहार में 3, बिहार में केवल 3, क्या 102 नॉन अटेंडेंस सिटी में बिहार में सिर्फ 3 ही शहर है? ऐसा हो सकता है आपको लगता? तो ये होता है कि हमारे स्टेट में 17 शहर प्रदूषित है, हमें उसे ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है। शर्मा जी का बेटा फेल हो गया है, हम जानते हैं कि वर्मा जी के बेटे के मार्कशीट में कुछ घपला हुआ है तभी वो पास हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शर्मा जी का बेटा पास हो जाएगा, हम तो फेल है। तो जान दो, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल में दुख है, दर्द है, क्या करें, हमें अपने 17 के लिए काम करना है, तो कॉमन मैन की तरह हमें काम करना है, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज। एंड ये एक नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान, ये एक और सरकार का है, और यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एडवांस्ड व्हीकल एमिशन एंड फ्यूल क्वांटिटी स्टैंडर्ड, हम BS4 से डायरेक्ट हम BS6 में गए, ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ऐसे करके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, जो सरकार ले रही है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, जिसके तहत भारत अपने जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है कि ऐसे इस आज के डेट में एक चीज आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट इन इंडिया हु हैज अमेंडेड अर्बन ट्री एक्ट। In Maharashtra also the Urban Tree Act was 1975. तो उसमें they brought some very important amendments. ये अमेंडमेंट लाया गया है हमारे राज्य के ग्रीनरी को बचाने के लिए, जिसके लिए मैं तहे दिल से, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखता हूं और ना ही रखना चाहता हूं, बट मैं तहे दिल से इस अमेंडमेंट के लिए
माननीय उद्धव जी ठाकरे और माननीय आदित्य जी ठाकरे का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए एक अमेंडमेंट लाया, जिसके कारण उन्होंने काफी बड़ा पंगा ले लिया। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो गए कि भाई ये कैसा कानून ला दिया। तो चलिए इस कानून का विश्लेषण करते हैं। जो अमेंडमेंट इन्होंने लाया, जो चेंजेस लाए, उसमें ऐसा है, जैसा कि मैंने बताया कि हर बड़े शहर में एक ट्री कमेटी रहती है, वो निर्णय लेती है कि ये पेड़ काटने का अनुमति देना है कि नहीं देना है, जो लीगल है। इलीगल रात को राम अवतार को बुला के कटवा लिए, सवेरे क्या होगा, थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा और क्या होगा, दो चार चटर्जी जैसे लोग आएंगे, चिल्लाएंगे, मीडिया वाले दो चार आएंगे, फोटो फोटो खींचेंगे, बस ठीक है, राम अवतार काट के तो निकल गया, पेड़ तो गया। तो अभी इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया वो ये है कि अगर आपके पेड़ की उम्र 50 साल से ऊपर है तो उसका निर्णय लोकल ट्री कमेटी नहीं लेगा, ये स्टेट लेवल ट्री कमेटी लेगा। पहले था कि एक पेड़ के बदले में अगर काटना है तो 5 पेड़ लगाना है। नेशनल है कि एक में 2 लगाने हैं। हमारे नागपुर में था एक में 5 लगाना है, महाराष्ट्र में बाकी जगह में एक में 2 लगाने थे, एक काटोगे तो 2 लगाओ। बट अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें वो ऐसा ना चलेगा। अब आपके पेड़ की जो उम्र है, आपको उतने पेड़ लगाए। अगर आप एक 20 साल का पेड़ काट रहे हैं तो 20 पेड़ लगाइए। आप अगर 200 साल का पेड़ काट रहे हैं तो 200 पेड़ लगाइए। और ये जो आप पेड़ लगाएंगे, पहले क्या था, पेड़ लगा दे भाई, और नर्सरी में गया, इत्तू सैक लेके आया, लगा दिया बाबू, और ऐसा नहीं चलेगा। अभी आप जो लगाओगे उसकी उच्चता 6 से 8 फीट होना जरूरी है, वरना नहीं चले। तो ये जो कुछ अमेंडमेंट है जो हमारे राज्य सरकार ने लाए हैं, ये बड़े अच्छे अमेंडमेंट्स है, और ये अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी है अगर हम अपने ग्रीन कवर को बचाना चाहते हैं। नहीं तो देखिए क्या हो रहा है कि हम भारी मात्रा में वी आर लूजिंग द ग्रीन कवर अक्रॉस इंडिया। यू कैन फाइंड दैट इफ यू गो टू द इवन टू समृद्धि महामार्ग, हमारे लिए वी फील प्राउड ऑफ समृद्धि महामार्ग। और ये जो लोग बता रहे हैं कि उसमें बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये सब तो ऐसी बात है भैया, लोग चला रहे गलत, एक्सीडेंट तो होना ही है उसमें का। And I being in Maharashtra, I feel very proud that I have Samriddhi Mahamarg. But I feel little sad when I find that Samriddhi Mahamarg के आसपास में कोई भी हरा भरा ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं। आज जो लोग नागपुर के हैं वो जानते हैं, कई लड़ाइयां नागपुर लड़ रहा है कई प्रोजेक्ट्स के खिलाफ में कि भाई पेड़ों को ना काटा जाए। आज छत्तीसगढ़ में दिग्दो एक माइन निकाला गया है मैंगनीज ओर के लिए, 4 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने सर डिफाइन किया है एसडीजी, और कॉमन मैन या सरकार उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ध्यान रख के ही आगे बढ़ना चाहिए, जो भी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं द एफर्ट्स ऑफ कॉमन मैन, कॉमन मैन क्या करेगा, हम और आप क्या करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। मैं सिर्फ लेक्चर नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एसी रूम में बैठ के मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं। मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि मैं जमीनी तौर पे काम कर रहा हूं, और सिर्फ बोलना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ युवा पीढ़ी जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आप तो अध्यापक हैं, आपके पास पूरे कॉलेज है, so you have the support of the entire college, the youth is with you, so whatever we are doing you can also do the same. The 2030 agenda for sustainable development के जरिए ये बताया गया है कि ये 17 पैरामीटर्स है। बहुत लोगों को लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, ऐसा नहीं है। आप गौर करें, नो पॉवर्टी 2030 एजेंडा में पूरे विश्व में गरीबी नहीं होना चाहिए, गरीबी कम करो। नो हंगर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। गुड हेल्थ, सबको चिकित्सा की सुविधा मिले। गुड एजुकेशन, सबको पढ़ाई मिले, सबको पढ़ने को मिले।
जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में आज भी हमारे देश में थोड़ा कम है। आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट है, सदियों से चले आ रहा है कि पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा सहूलियत दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा मतलब कुछ बातें हैं, मतलब ये अगर हम हमारे पुराणों की भी बात करते हैं, आप हमारे कोई अगर महान ग्रंथों की भी बात करें, तो जिस तरह से हमने, अगर महाभारत की बात करें, तो आप बताइए उसमें अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, उनका पुत्र अश्वत्थामा, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, यहां तक कि मद्र नरेश, यहां तक कि द्रुपद, इतने सारे पुरुष चरित्र को हमने बड़े अच्छे तरीके से चित्रण किया है आने वाले प्रजन्म के लिए। पर महिलाओं में कुंती, द्रौपदी और गांधारी खत्म। हमने गांधारी को क्या दिखाया? अपने अंधे पति के लिए आंखों में पट्टी बांध दी हुई एक महारानी। कुंती का चरित्र का विश्लेषण कैसा किया? ये सदियों से चले आ रहा है। एक प्रश्न है जो हर वक्त हम अगर सोचेंगे तो हमारे दिमाग में ये हिट करेगा, अग्नि परीक्षा सीता मैया को ही क्यों? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये है। तो ये जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में भी है, बाकी देशों में भी है, राइट? इसलिए आज इतने सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा में भी जेंडर इक्वालिटी आ है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये एसडीजी के गोल है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। उन्होंने पहले चालू किया 2014, ये आया 2000। तो हम सही रास्ते पे हैं। और जैसा कि आपको मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया, स्वच्छ भारत मिशन मेरे बहुत करीबी है, मेरे दिल के करीबी है, क्योंकि मैं नागपुर शहर का, जब से स्वच्छ भारत मिशन के 2018 से मैं इसके ब्रांड एम्बेसडर हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नागपुर महानगर पालिका का, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र शासन का, जो हर साल इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बदले हैं, पर मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि 2018 से लेकर 2023 मैं कंटिन्यू हो रहा हूं एज ए स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर। द रिन्यूएबल एनर्जी, ये एनवायरमेंट का है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने इतनी सारी बातें करी है। गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये सारी चीजें जो आपके समक्ष है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक मिथ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल पर्यावरण के लिए, पर अगर आप ये पूरा देखेंगे तो इसमें मेनली 7 नंबर रिन्यूएबल एनर्जी और 13 नंबर क्लाइमेट एक्शन, जिसपे हम बात कर रहे हैं आज, ये डायरेक्टली एनवायरमेंट से रिलेटेड है। बाकी लाइफ बिलो वाटर, एक्वेटिक लाइफ, लाइफ ऑन लैंड, मेरे और आपके जैसे लोग, पीस एंड जस्टिस, धज्जियां उड़ रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच। नाउ अगर हम बात करते हैं कि मैं और आप क्या कर सकते हैं, कॉमन मैन, हम क्या करें यार? सबसे पहले 7 R's, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रीथिंक, रिकवर, अर्थात रिसाइकिल। आज ये बड़ा अच्छा कप है मेरे पास, मैं पानी पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, कल को ये कप का डंडा टूट जाता है तो अधिकांश लोग इसको फेंक देंगे, पर हम इसको अब फ्लावर पॉट की तरह यूज कर सकते हैं। मैंने रिसाइकिल किया। रिफ्यूज, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे हमें रिफ्यूज करना पड़ेगा। रिड्यूस, अपनी इच्छाओं को कम करो, अपनी चाहत को कम करो, और हर चीज मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा है, इससे रोकिए। रीयूज करिए, रिपेयर करिए।
आज ये फ्लास्क है, इसमें मैं ठंडा पानी पीता हूं, इसी कारणवश ठंडा थोड़ा कम हो रहा है। इसकी कीमत क्या है? 1000 रुपए। अरे 1000 रुपए फेंक यार, दूसरा लाते हैं। एक बार सोच लीजिए, क्या ये रिपेयर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कर लीजिए। प्रैक्टिस लो कार्बन लाइफस्टाइल। हर व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को लो कार्बन लाइफस्टाइल करने की प्रैक्टिस करे। हर व्यक्ति सोचे कि आपके जो एक्शंस है उससे कितना कार्बन एमिशन हो। बड़ा कठिन है पर हो सकता है। रिड्यूस वाटर फुटप्रिंट। पर कैपिटा पानी आप कितना यूज कर रहे हैं? आपके घर में नल, आप ब्रश करते समय नल खुला छोड़ रहे हैं, आप शावर में नहा रहे हैं तो आप बाल्टी से नहा सकते हैं, आप गाड़ी को पाइप डाल के धो रहे हैं, आप बाल्टी से धो सकते हैं, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो ये जो आपके जो वाटर फुटप्रिंट्स हैं इसको आप कम करिए एंड गो फॉर सस्टेनेबल ऑप्शंस। एग्जाम्पल, सस्टेनेबल ऑप्शन, जैसे ऑर्गेनिक फूड है, सस्टेनेबल ऑप्शन, सस्टेनेबल कपड़े, गो लोकल। क्यों? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लोकल जाइए, आपके लोगों को मदद होगी, आप बड़े बड़े ब्रांड को क्यों मदद कर रहे हैं? नो, एक बात समझिए कि अगर आप कोई ब्रांड की चीजें खरीद रहे हैं जो आपके यहाँ नहीं बनता है, विदेशों में बनता है, उसको आपके यहाँ आने में काफी ईंधन लगा है, काफी एमिशंस हुए हैं, तो यही अगर आप लोकल चीजें लेंगे, ऑफ कोर्स अगर वो अच्छा है तो आप उससे जो कोई भी चीज प्रोडक्शन से लेके आप तक पहुंचने में जितना एनर्जी खर्चा हुआ है, जितना पानी खर्चा हुआ है, जितना एनवायरमेंट की चीजें खर्चे हो गए हैं, जितना आपके रिसोर्सेस खर्चे हुए हैं, उसको आप रोक सकते हैं अगर आप अपने इन विचारों को अपने विचारधारा में इंप्लीमेंट करें। सिंगल यूज प्लास्टिक महाराष्ट्र सरकार ने बैन किया है, अभी पूरे देश में बैन है, पर आज भी हम यूज कर रहे हैं। छोटी सी बात है, बैग लेके जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। बीच में बंद हो गया था कोविड के पहले, काफी हद तक नागपुर में, पर कोविड में यही जो ठेले वाले हैं वही भगवान बन गए, और तो कोई था नहीं, फिर से प्लास्टिक आ गया, पर हम इसे रोक सकते। आपके शहर में पेड़ अवैध रूप से जो कट रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाइए, बोलिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अडॉप्ट करिए। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं, नागपुर शहर की बात कर रहा हूं, कि भाई मैंने ईवी व्हीकल खरीद लिया और मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं पर्यावरण के लिए। आप नहीं दे रहे जनाब, पूछिए कारण। जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग सोलार से नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का आपको कोई फायदा नहीं। देश को, राष्ट्र को, समाज को कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके घर के लाइट वाले सॉकेट से चार्ज कर रहे हैं तो आप थर्मल पावर प्लांट में जो एनर्जी बन रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपको दिखाया कि थर्मल पावर प्लांट आर द बिगेस्ट पोल्यूटर्स। सो अगर आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लेते तो जो टेल पाइप पोल्यूशन था उसको आपने ट्रांसफर किया थर्मल पावर प्लांट पे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज के डेट पे ई व्हीकल, टू व्हीलर्स, गली कूचे में कंपनियां बन गई टू व्हीलर्स की, डबल दाम पे बिकता है। हम अगर मोपेड की बात करें तो सबसे महंगा हमारा चेतक है आज के डेट में, है बजाज है चेतक, पर जब ई व्हीकल देखिए उसी दाम पे बिक रहा है। वो आदमी क्या करता है, अपने घर के इलेक्ट्रिक पावर से चार्ज कर रहा है। यहां पे हमारी सरकार कम पड़ रही है। जिस रेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चार्जिंग स्टेशन नहीं ला रहे हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर जैसे हमें पंड्या जी हैं, हमको अभी ठेंगा दिखाए, उन्होंने वो टाउन में आके इलेक्ट्रिक कार खरीद लिए,
और उन्होंने बोला मैं पर्यावरण प्रिय हूं, मैं घर के पावर से नहीं करूंगा, मुझे तो चार्जिंग स्टेशन में जाना है। उनके घर के 5 किलोमीटर में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और चार्जिंग स्टेशन जाने में 10 किलोमीटर, वहां जाके लाइन में लग के 2 घंटा और 6 घंटा चार्जिंग करेंगे तो पंडित जी बाकी काम कब करोगे भाई? तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। ई व्हीकल करके कूदने से अच्छा है कि हमारे चार्जिंग स्टेशन पे सरकार को फोकस करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि समृद्धि महामार्ग पे हर 50 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन रहे ई व्हीकल, तो लोग उसे यूज करेंगे। और फास्ट चार्जिंग, कौन 8 घंटा रुकेगा यार? 1 घंटा बहुत हो गया। मोबाइल में आ गया ना फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल। पहले हम ही लोग करते थे ना लंबा लंबा 3-3, 4-4 घंटा चार्ज, और आधे घंटे में खत्म। गो वोकल फॉर लोकल, जैसा मैंने आपको बताया। एंड देन अच्छा, वो एक छूट गया, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। जब हम चीजें खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, उसके ऊपर में स्टार लगा रहता है, वो बताता है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है। थोड़ा पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर हमारे पास है तो हम दे देते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा एनर्जी एफिशिएंट लेना है। मेरे पुराने घर में एसी नहीं था, गर्मी में कूलर चला के खुश थे। बेडरूम में लगाने गए, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वोल्टास। मेरी हैसियत से मैं 4 स्टार लिया। देखिए, मैं झूठ बोलने के लिए बोल सकता मैंने 5 स्टार लिया जो एकदम एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट, नहीं ले पाया सर, क्योंकि 4 स्टार और 5 स्टार में 7,000 का फर्क, और 3 स्टार और 4 स्टार में 3,000 का फर्क। तो मैंने 4 स्टार लिया, 3,000 दिया, 7,000 नहीं दे पाया। सभी को ये सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पर्यावरण के लिए सोचने के लिए आप उधार लेके, भैया मेरा बजट तो 30,000 का था, 5 स्टार लेने के लिए 50,000 है, 20,000 उधार दे, ऐसा कोई नहीं बोले। थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं 3 स्टार की जगह 4 स्टार लिया, 3,000 ज्यादा दिया, हैसियत है मेरी वही दे दिया भाई। ये किसी पे 7-8 हजार रुपए ज्यादा एक स्टार के लिए नहीं पुराया, नहीं दिया, आप मत दीजिए, पर 4 स्टार तो लीजिए। तो इस तरह से एडुकेट, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोग टीचर्स हैं, आपके सामने यूथ फोर्स है, आप आने वाले समाज को बना रहे हैं, आप आने वाले देश की युवा पीढ़ी को बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को इस 25 से 35 साल के उम्र के लोगों पे अथाह उम्मीद है। ये आपके हाथ में है। एम्पलीफाई, जो भी आपको लगता है बोलिए, लोगों तक पहुंचिए। मैं ये जो आपको बोल रहा हूं इसमें से काफी कुछ मैंने किया है, हम लोगों ने किया है। ये हमारा एक कैंपेन है, पूर्णिमा दिवस कैंपेन। 2014 से ये शुरू किया हमने, तत्कालीन महापौर माननीय अनिल जी सोले के मार्गदर्शन में ये कैंपेन शुरू हुआ। कोविड का टाइम छोड़ के हर महीने पूर्णिमा के दिन नागपुर नगर पालिका एक चौक चुनता है, और उस चौक में हमारे ग्रीन विजन फाउंडेशन जो हमारा एनजीओ है, हम वहां पे जाते हैं और जाके लोगों को 1 घंटा सिर्फ 8 से 9 अनावश्यक लाइट्स ऑफ करने बोलते हैं। अनावश्यक, जिस ऑफ, किसी के दुकान में अगर 20 लाइट जल रहा है तो भैया 5 लाइट ऑफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के विनंती करते हैं। और 2014 से हर महीने पूर्णिमा के दिन ये कैंपेन किया गया है, और जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके समक्ष है कि अभी तक जून 2023 तक का डेटा हमारे पास नागपुर महानगर पालिका की तरफ से मिला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमने 2.5 लाख इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट बचा पाए हैं, और 2.5 लाख केजी ऑफ कार्बन एमिशन हमने कम किया। नागपुर शहर ने 2.5 लाख केजी ऑफ कार्बन एमिशन को बचाया है। बाकी कोल 6,600 और पानी 18 लाख तो आपके समक्ष ही है। एक छोटा सा एफर्ट है, जन जागरण करना, लोगों तक जाना। ये किसी को नहीं बोले सब बंद करके अंधेरे में आ जाओ,
बस 1 घंटा महीने में एक दिन, पूर्णिमा के दिन अगर ये हम करते तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। ये गणपति विसर्जन, आप जो नागपुर शहर में विसर्जन में जो आर्टिफिशियल टैंक देखते हैं, उसके जो रचयिता है उनमें हमारा नाम भी होगा। लोगों के साथ मिलके, कई लोगों के साथ मिलके हमने ये शुरुआत करी। जो लोग नागपुर के हैं वो देख सकते हैं, ये फुटाला लेक में ये टैंक बना हुआ है। ये हमारे पूरे टीम है और हम लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि आपकी पीओपी की जो मूर्तियां हैं उसका विसर्जन आप आर्टिफिशियल टैंक में करें, क्योंकि पीओपी घुलता नहीं है। पीओपी सदियों तक पड़ा रहता है, उसमें पेंट होते हैं, उसमें हेवी मेटल होता है, एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरा होता है। खैर, पिछले 2 साल से तो नागपुर शहर के सारे तालाबों को बैन कर दिया गया है, सारे तालाबों को ब्लॉक कर दिया जाता है, आप विसर्जन कर नहीं सकते। अगर आपको विसर्जन करना है बड़े मूर्तियों का भी, तो कोराडी के रोड पे एक आर्टिफिशियल टैंक बहुत बड़ा बनाया गया, वहां जाके आपको करना है। और इस इको फ्रेंडली गणपति विसर्जन की जो एक अभूतपूर्व कामयाबी है, जिसमें पिछले साल, और ये देखिए, जब एक आम आदमी काम करता है ना, तो आपको लोगों की मदद मिलती है। माननीय कलेक्टर महोदय अश्विन मुदगल जी हमारे टीम की हौसला अफजाई करने के लिए आए हुए हैं। माननीय मेयर दयाशंकर तिवारी जी आए हुए हैं। माननीय हमारे कमिश्नर साहब अभिजीत बांगर हमसे रिपोर्ट लेते हुए, और हम गणपति विसर्जन के 10 दिन, एक दिन नहीं 10 दिन हम फुटाला तालाब पे रहते हैं, एयरफोर्स के साइड में। ये अभी अभी जो कमिश्नर साहब ट्रांसफर हुए चंद 10 दिन पहले, माननीय राधा किशन जी आए हुए हैं। तो जब आम आदमी काम करता है ना, तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। और हम इसी तरह से गणपति विसर्जन और देवी विसर्जन में हम काम करते हैं। और ये कामयाबी आपके समक्ष है कि 2022 में गणपति विसर्जन के दौरान 2,46,000 मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में कराया गया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नागपुर के आवाम का, नागपुर के गणेश मंडलों का, जो बड़े मूर्तियों का विसर्जन खुद होकर इतने दूर कोराडी के रास्ते पे करीब 12 किलोमीटर दूर जाके खुशी खुशी बप्पा का विसर्जन उन्होंने आर्टिफिशियल टैंक में किया। तो जिस शहर में प्रशासन, सत्ता पक्ष और आम जनता इस तरह से मिलके शहर के लिए काम करता है, उस शहर में मैं रहता हूं, मैं गर्वित हूं। इस शहर में मैं रहता हूं तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं नागपुर में रहता हूं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। ये चीज बाकी जगह कोशिश करके देखें सर, मुश्किल है कामयाबी मिली। ये हमारी वाटर मॉनिटरिंग है। हम समय समय पर नागपुर के लेक्स के वाटर मॉनिटरिंग करते हैं, मास्क पहन के काम कर रहे हैं। मतलब ये कार्यक्रम कोविड के समय भी पूरी तरह से चला है। स्वच्छता रैली, इसमें मैं हूं, कमिश्नर साहब है, हमारे टीम के लोग हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये हमारा एक कैंपेन था, जो आप भी कर सकते हैं, कि लोग वृक्षों पे फ्री में एडवर्टीजमेंट लगा देते हैं, कीले ठोक देते हैं, क्योंकि पैसे नहीं देने पड़ते और वृक्ष कुछ बोल नहीं सकते। तो हमने कई बार ये मुहिम निकाला है नागपुर शहर में, अलग अलग जोन में एनएमसी के साथ मिलकर निकालना पड़ा है, नहीं तो पब्लिक मारेगी। कि जाके ये जहां भी इलीगल होर्डिंग है, जहां पे भी पेड़ों में कोई एडवर्टीजमेंट लगाया गया है, उससे हमने निकलवाया है। इसी के तहत जो नागपुर के हैं उनको मालूम होगा कि G20 के समय नागपुर शहर में लाइट्स लगाए गए थे और पेपर में भी आया था, करीब 1 लाख कीले ठोके गए थे। तो इस मुद्दे को हमने उठाया, माननीय कमिश्नर सर से मिले, सभी से मिले, और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी बात का इम्पोर्टेंस दिया, मीटिंग लिए, और G20 के 7 दिन के अंदर में सारे जो कीले थे, सारे जो लाइट थे, सारे निकाल लिए गए। लगना ही नहीं चाहिए था, अब खैर लग गया, कम से कम निकाल तो लीजिए। पर यह मुहिम हमारा अलग मुहिम है, जिसमें जो भी एडवर्टीजमेंट देते हैं, हम उन सबके एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं। दुनिया पेड़ लगाती है, थोड़े बहुत पेड़ हम भी लगा लेते हैं। पथनाट्य के जरिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में हम प्रोग्राम्स के जरिए
युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश करते हैं। और जितना ज्यादा आप लोगों बच्चों से मिलेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के करीब जाएंगे, उतना आप कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में गीला कचरा के सेग्रीगेशन का काम हम करते हैं। हम मतलब कॉमन मैन, जो मैंने पहले ही बोला कि कॉमन मैन को करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये पे जाकर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सिर्फ शहरों में नहीं, बस्ती में जाके आपको एकदम डाउन ट्रॉडन में, सबसे नीचे लेवल पे जाके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आय मिलेगा। से नो टू प्लास्टिक, मैं गरम के जा, ये एक बहुत अच्छी बात हुई, जैसा मैंने बताया हमको कर रहा है। तो नागपुर शहर में बहुत सारे पेड़ चौक हुए थे, तो तत्कालीन हमारे कमिश्नर साहब थे माननीय अभिजीत बांगर साहब, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे बहुत सारे पेड़ चौक हुए हैं, और एक दिन वो खुद हमारे साथ घूमे, और उसके बाद उन्होंने 9,000, रिपीट 9,000 ट्रीज को श्री अभिजीत बांगर जी ने डीचोक किया इसी तरह, और 9,000 पेड़ों को डीचोक करने के बाद ऐसे फोटो लिए गए 9,000 पेड़ों के। माननीय अभिजीत बांगर बड़े अच्छे व्यक्तिमत है, नागपुर से उनका तबादला नवी मुंबई में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में उन्होंने नवी मुंबई को देश में तीसरे पोजीशन पे ले गए। उनकी व्यक्तित्व और उनकी कर्मठता को देखते हुए हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी थाने में अभी कमिश्नर करके ले गए हैं। बड़े अच्छे व्यक्तिमत है श्री अभिजीत बांगर, पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत है। कभी आपका उनसे मिलने का मौका मिले तो पर्यावरण पे अगर आप बात करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो मार्गदर्शन करेंगे। रीचिंग आउट सिटीजन्स, लोगों तक पहुंचना, एंड इस तरह से हम हजारों ऐसे कैंपेन्स करते हैं, पर्यावरण के विभिन्न विषयों पर लोगों तक पहुंचना, जितना हम कर सके, जितने हमारे साध्य में है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है, महसूस करो एहसास होगा, क्योंकि समय चक्र था रेत में धसा, चल पड़ा वो भी एक नई दिशा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर सीरीज। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस है तो हम उस पर चर्चा कर सकें। ये कैसे बंद होगा? स्टॉप। राइट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। One question from my side, sir. There is a need that everything that means the garbage, even जो हमारा नैवेद्य वगैरह रहता है वो भी पानी में डाल देते हैं लोग, या बाकी भी कुछ, तो इसके लिए स्कूल्स में जाके थोड़ा सा अवेयरनेस, या स्कूल्स में भी वही है मैडम। देखिए, ये पूरे, आप सही बोल रही है मैडम, ये पूरे अवेयरनेस की बात है। जब तक कोई आम आदमी नहीं सोचेगा कि ये शहर मेरा है, ये देश मेरा है, ये तालाब मेरा है और मैं इसे गंदा ना करूं, तब तक सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। आप किसी व्यक्ति को, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि चमचमाते कार से आते हैं, उतरते हैं, कचरा निकालते हैं, और हमारी जो नाग नदी या नाग नाला बह रही है उसमें निर्माल्य डाल जो के चले बोलते जाते हैं, हैं। बहुत सारी चीजें करते हैं, एडुकेटेड लोग हैं। तो हमारी वही कोशिश है, आप भी वही कोशिश करें। आम आदमी को ये करना पड़ेगा, कॉमन मैन को ये करना पड़ेगा, अगर हम हमारे शहर को, हमारे देश को पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं। सरकार अपनी काम कर रही है, उनके खुद के लिमिटेशन है, हमें आगे बढ़ के ये दायित्व अपने कंधे पे लेना है। नहीं, वही मैं बोल रही थी सर कि उनको बस वहीं के वहीं फाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा सवाल है मैडम। नागपुर महानगर पालिका ने, जैसे मैंने आपको नाम बताया, ये अभिजीत बांगर जी थे, उनका एक ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने क्या किया, नागपुर में एनडीएस, न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड की शुरुआत करी, और न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड में एक्स आर्मी वालों को लिया गया, एक्स सर्विसमैन। अब बुढ़े बाटे नहीं, यंग,
जो लोग 5 साल 7 साल करके शॉर्ट टर्म में बाहर निकले हैं, और मैक्सिमम एज इज सम 45 और 46, और इनको लिया गया है। ये घूमते रहते हैं और जहां भी आपको गंदगी करते दिखते हैं, प्लास्टिक यूज करते दिखते हैं, ये वहीं पकड़ के आपको फाइन करते हैं। कोई अगर खुले में शौच कर रहा है, खुले में सुसु कर रहा है, या फिर कचरा फेंक रहा है, तो ये 190 एनडीएस कर्मी को रिक्रूट किया गया नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत। जो आप, और अगर इसके बारे में आपको जानना है तो नागपुर महानगर पालिका का फेसबुक पेज है, वहां आप जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कि एनडीएस किस तरह से लोगों को पकड़ रही है और किस तरह से लोगों को फाइन कर रही है। जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली यही हो रहा है। नहीं सर, वो जहाँ पे वो लोग पकड़ते वहां पे नहीं डालते, दूसरी जगह ढूंढते फिर वहां जाके डालते हैं। नहीं मैडम, देखिए नागपुर का पॉपुलेशन 35 लाख, इसमें इस तरह के हरकत करने वाले 3,50,000 और एनडीए सिर्फ 200, तो जो दिखेगा उसको पकड़ेगा, ऐसा है। पर बेसिकली क्या है, हमको सुधरना है और कोई बात नहीं। वो तो है, दूसरों को। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Participant, please ask the बहुत बड़ी question. बात है, आपके पास 7,000 बच्चों की संख्या है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और अगर आपको लगता है, देखिए ये पर्यावरण के लिए अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में या कहीं पे हमें इस तरह के कोई लेक्चर लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जरूर आप हमें कांटेक्ट करिए, और मुझे खुशी होगी कि मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों तक अपील कर सकूं, लोगों तक पहुंच सकूं। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। कोई क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ जी आप जो एक्टिविटी आपकी है, इससे बेशक सर जी, हम सभी पार्टिसिपेंट्स को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? बिजन कुमार चीर? सर मैं आप कहाँ से बोल चिमूर रहे हैं? ग्राम गीता महाविद्यालय चिमूर में से बोल लेक्चरर रहे हूँ सर, चिमूर से जी। हैं? ओके सर। Kaustubh, he's कभी a आपके कॉलेज में आना होगा बोलिएगा सर, आ जाएंगे सर। Kaustubh, he's a student of our friend, Dr. Mahendra Thakre. ओह अच्छा, ओके। Yeah. Recently has been awarded doctorate degree. ओके। प्रवीण सर मेरे से 1 साल सीनियर, महेंद्र ठाकरे मेरे से 1 साल जूनियर। मैं बीच में सॉस का काम करता था, ऊपर में भी एक ब्रेड पीस, नीचे पे ब्रेड पीस में, बीच में सॉस। But dear, बट एक चीज प्रवीण सर, देखिए मैंने पहले भी बोला है, आपका जो जिस तरह से आपने एकेडमिक्स में पर्यावरण एनवायरमेंटल साइंस को प्रज्वलित रखा है, जीवित रखा है, उसके लिए हर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट नागपुर शहर का आपको धन्यवाद देना चाहेगा। although Dr. Mr. Kaustubh, although you are younger than 1 year younger than me, but still your knowledge has crossed all the permissible limit. Since सर we नहीं are सर, मैंने वही working, बोला सर। सर 30 साल से वही कर रहा हूँ, yeah, I know you. और तो कुछ किए नहीं लाइफ में। So who is going to propose the vote of thanks today? Because I have given some responsibility to one of the participant. अगर कोई नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं ही कर लेता हूँ यार. Yes, sir. Myself. Okay. Okay, Dr. Suparna, please continue. Dr. Suparna, Yes, sir. Sir, please. I take this opportunity to express my gratitude towards the Kaustubh Chatterjee sir for giving us such a valuable information on environment, threats on environment, and preventive measures. Sir enlighten us on the Paris Agreement, Kyoto Protocol, and many other things. How India is in a galloping speed achieving these targets of air purity through the use of solar energy and other alternative uses also he discussed very well. It seems that sir is very sensitive towards the health of Mother Earth and wanted common man's endeavor to maintain
her health. We all wish you, sir, good luck in your future endeavor. Thanking you once again. Thank you, sir. Thank you. एक मिनट, मुझे भी थोड़ा Thank कुछ you. बोलना है Take यार. care. हेलो Bye-bye. हेलो कौस्तुभ. Hello. हेलो. हाँ जी. Sir, Kaustubh and my dear participant, हाँ जी, this बोलिए. situation reminds me some Hindi slogan, Hindi poetry. Since our जी. Kaustubh is also very much highly interested in Hindi poetry, so here it goes, here it begins. धूप में तप के देखो, बारिश में भीग के देखो, धूप में तप के देखो, बारिश में भीग के देखो, जिंदगी क्या है, किताबों और इंटरनेट के बाहर निकल के तो देखो यार. क्या बात है, क्या हाँ, बात, क्या बात है. क्या बात है. बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. वेरी गुड सर. बहुत बढ़िया. थोड़ा पार्टिसिपेंट की अगर रिक्वेस्ट होगी तो विल अरेंज योर वन मोर प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट वीक आल्सो. I have reserved one Sir, slot. definitely, definitely. I Yes, have sir. reserved one slot for you again. So okay. जैसा बोलेंगे सर So आप. yeah. चलिए सर, टेक केयर. Okay. 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 Good day. Bye-bye. Good day. Mhm. Please do not leave the meeting. I would like to take your attendance also. Na? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. I hope you must have enjoyed the informative presentation of Mr. Kaustubh Chatterjee. Yes, sir. Very much, sir. Yeah, yeah. So tomorrow again we'll be meeting at 10:45. And regarding your attendance, so roll number one, Dr. Deepti Balvia, Yes, sir, present. Dr. Rushali Parkhi, Yes, sir. Present. Miss Neetu Amlani. Present, sir. You have given very nice introduction. Thank you, sir. Dr. Nirav. Yes, sir. Yes, sir. Present, sir. डॉक्टर नीरव थोडं असं तयारी करायची ना, समजा आपल्याला जर कोणाला गेस्टला इंट्रोड्यूस करायचं असेल आणि कोणाला व्होट ऑफ थँक्स द्यायचं असेल तर थोडीशी तयारी पण करायचं, थोडंसं प्रिपरेशन पण करायचं. सर पण ते त्यांचा I hope लेट झालं होतं आणि हा. त्यांनी मधात हे केलं, डिस्टर्ब केलं म्हणून मग मी थांबून गेलो सर. हो हो. आणि जेव्हा तुम्ही हे सर्व ऍक्टिव्हिटी काही म्हणजे व्होट ऑफ थँक्स किंवा हे काही करताय, इंट्रोड्यूस करताय, व्होट ऑफ थँक्स करताय, तर आजूबाजूला जनरली आपल्या फॅमिली मेंबरला नका ठेवू. तुम्ही आपल्या स्टडी रूम मध्ये बसा व्यवस्थित आणि देन यू प्रोसीड फॉर युअर अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीज. देर शुड नॉट बी एनी चिल्ड्रन्स और फॅमिली मेंबर्स इन अँड अराउंड यू, बिकॉज आय एम लिस्निंग सम व्हॉइस ऑफ युअर चिल्ड्रन्स अँड ऑल. त्याच वेळेस तर माझी पोरगी पडली हो. होती म्हणून. अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी. ओके. हो सर. Here after, please take care. हाँ. Mrs. मीनल राजदेव. Yes, sir. बहुत आपने भी बहुत बढ़िया इंट्रोड्यूस करा दिया आज के गेस्ट को. Thank you, sir. I like the way you have introduced the guest and proposed the vote of thanks. Thank you, sir. Thank you so त्याच्यावरून much. थोडंसं तुम्ही म्हणजे अभ्यास केल्यासारखं वाटलं मला जरा. And that is the only well preparation is only key to success. Thank you, sir. डॉक्टर सुपर्णा मुरकुटे. Present, sir. डॉक्टर सुपर्णा मुरकुटे. हाँ. डॉक्टर अमित काळबांडे. Present, sir. डॉक्टर रचना महाकाळकर. Yes, sir. Present, sir. डॉक्टर विनोद डोंगरवार. डॉक्टर विनोद. डॉक्टर दीप्ति मालविया. डॉक्टर रुशाली Present, sir. पार्थी. Present, sir. Dipti is also present. Dr. Rushali. Yes, sir. Just a minute. Dr. Arvind Somnathe. Dr. Shruti Gharade. Pallavi Deshmukh.
Present, sir. Dr. Minakshi Kamble, Dr. Sheel, Present, sir. Dr. Vivek Manik. Vivek Manik, are you attending all the? Have you attended all the session? Yes, sir. Have you attended all the session? Yes, sir. Okay. Dr. Rajesh Sonkusre, Yes, sir. Present, sir. Dr. Vishal Daulatkar, Yes, sir. Present, sir. Dr. Swati Yadav, Mr. Joel Kerketa. Yes, sir. Present, sir. Okay, he's from Raigad. Assistant Professor in English. Okay. Miss M. Kani Mozi. Present, sir. Oh. Have you understood what Mr. Kaustubh have said? Or you No, have sir. find out some I difficulties? read out from the slides, sir. Acha, acha. You're from Salem. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Tamil Salem. Nadu, Yes, no? sir. You're Salem, from sir. Salem. Yes, I had sir. been to Salem. I came to Salem for taking the PhD Viva at Okay, Salem, okay, sir. Okay, sir. Which environmental college, science. sir? Which college or university, sir? From Mount Carmel College. Actually, Mount Carmel Okay, College in Bangalore, but she okay, had sir. carried out some research work in Salem. Okay, So okay, I sir. was invited Sir, by, next time if you come here, please call me, sir. yeah. Next time I'll come. Sir, it is very nice to be your student in this program, sir. Yeah. I used to come to Bangalore University, Bangalore. Okay, sir. Okay, sir. Then Dr. Shikha Awasthi. Yes, sir, present. ठीक है. Then we'll be meeting tomorrow, ना? Do something. Yeah. Sir, काही पार्टिसिपंट लोकांना काही डिफिकल्टी असेल त्यांना काही विचारा. काही तुम्हा लोकांना मला सजेशन द्यायचे असेल तरी युअर सजेशन्स आर मोस्ट वेलकम इन ऑर्डर टू मेक दिस रिफ्रेशर कोर्स मोर इफेक्टिव्ह, मोर इंटरेस्टिंग. हेलो. हाँ बोला ना. हाँ बोला. जी सर, मेरा 22 रोल नंबर है लास्ट में. आपने बोला था कि 27th को मेरा सेमिनार है, बट सेमिनार का जो फ्लायर है उसमें 27th को वेबिनार दिखाया है. जी, तो आप फिर मैं 26 को ही कर रहा लेंगे. हाँ 26 को. हाँ वेबिनार इज ऑन 28 ना. हेलो. जो मैम ने फ्लायर शेयर किया था उसमें तो 27th लिखा है. तो 27 को ही रहेगा ना वो. मतलब मेरा सेमिनार 28th को है कि 27th को? 27 को. ओके सर. Thank you. Again, we'll be meeting tomorrow at 10:45, and tomorrow first session is from Mr. Atul Devkar. He's working as the Assistant Conservator of Forest, Anti-Poaching Unit of Pench Tiger Reserve at Nagpur. So we'll be meeting tomorrow at 10:45 sharp. ठीक है? हाँ. Then just I would like to shoulder the responsibility of Mr. Atul Devkar, who will read the biodata and who will propose the vote of thanks for tomorrow's first session. आपलं कुठपर्यंत झालं होतं आज? मिस मिनल राजदेव पर्यंत झालं ना? सुपर्ण मुरकुटे. हाँ अच्छा. हाँ डॉक्टर अमित काळबांडे. Yes, sir. I would like to shoulder this responsibility to Yes, you. sir. I will take the responsibility. Yes, sir. Yeah. You will have to introduce the Mr. Atul Devkar. Atul Devkar. त्यांचा बायोडाटा मी तुमच्या ग्रुपमध्ये पाठवतोय आता. हो सर. आणि हा आणि अर्चना महाकाळकर मॅडमला होट ऑफ थँक्स करू द्या. Okay, sir. चालेल. ओके सर. चालेल. किंवा दोन्ही जण तुम्ही सांभाळा. हॅलो अमित काळबांडे. येस सर. यू Yes, sir. इंट्रोड्यूस अतुल देवकर आणि प्रपोज होट ऑफ थँक्स. ओके सर. डेफिनेटली. नंतर मग जे सेकंड प्रेझेंटेशन राहिलं आहे, सेकंड प्रेझेंटेशन कोणाचं आहे? महेंद्र पाटील. ते मग अर्चना महाकाळकर सांभाळतील आहे. समजलं? डॉक्टर अर्चना महाकाळकर, यू विल हॅव टू गेट Okay. रेडी फॉर द सेकंड सेशन. Okay, sir.
जे गेस्ट स्पीकर आहे त्यांचा बायोडाटा आणि जे काही आहे ते तुमच्या मी पाठवतोय मी तुम्हाला तुमच्या ग्रुपमध्ये. चालेल सर. हा, आणि थर्ड प्रेझेंटेशनला ह्या डॉक्टर अर्चना प्रजापती, शी इज रेग्युलरली इरेग्युलर, शी इज absent almost from all refresher course. She has not attended any single day. ठीक है, if suppose she will be absent, then we'll have to switch over to Vinod Dongarwar. Dr. Vinod Dongarwar, you will have to also get ready for the third session after lunch. ठीक आहे, कोणाला काही विचारायचं आहे, कोणाला काही डिफिकल्टी आहे, कोणाला काही अडचणी आहे, कोणाला काही सजेशन द्यायचं आहे, इन ऑर्डर टू मेक दिस कोर्स more impressive, more interesting, your suggestions, my dear participants, your suggestions are always welcome. So shall we leave the meeting? सर एक Shall we विचारायचं leave? होतं. हा, बोला 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 डॉक्टर सुपर्णा मॅडम. सर पहिले जे टॉपिक दिले होते सेमिनारचे ते चेंज हा, झालेली थोडेसे परत रिटर्न. थोडेसे स्लाइटली चेंजेस केले आम्ही. जस्ट आय हॅव ऍडेड द सम ऍडजेक्टिव्ह अँड ऑल ना. तर तुमचं म्हणजे काय म्हणतात त्याला, जो जिस्ट आहे ऍबस्ट्रॅक्ट ऑफ द सेमिनार विल रिमेन सेम. थोडंसं काहीतरी इंग्लिशचे ऍडजेक्टिव्ह टाकले, कुठेतरी इश्यू केलं, कुठेतरी चॅलेंजेस केलं, कुठे रिसेंट ट्रेंड केलं आहे, असंच केलं नाही ना. सर, नाही सर, ते माझ्या काहीतरी याच्यात कम्प्लीट चेंज आहे की एन्व्हायरमेंट, ते. हो, ते एक एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशनचे 2 झाले होते, म्हणून मग मी थोडंसं एक चेंज केलेलं आहे. नाही, मला कॅलेंडर दिलं, एन्व्हायरमेंटल कॅलेंडर हा हा, दिले. हो हो हो, बरोबर आहे ना. एन्व्हायरमेंटल कॅलेंडर म्हणजे राईट फ्रॉम द बिगिनिंग, जानेवारी महिन्यापासून ते 31 डिसेंबर मध्ये एव्हरी मंथ वी आर ऑब्झर्विंग. फॉर एक्झाम्पल वर्ल्ड एन्व्हायरमेंटल डे, देन वर्ल्ड वॉटर डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वाईल्ड लाईफ वीक. तर तुम्हाला या सर्व प्रत्येक दिवसांचं काय काय महत्व आहे, काय काय सिग्निफिकन्स आहे, आणि वाय वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल दिस डे, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड इट, व्हॉट आर द एम्स, व्हॉट आर द गोल्स, हे थोडंसं सर्व सांगायचं आहे. नाही, फक्त हल्ली चेंज हो हो, ठीक आहे, मला माहिती आहे मी जे काही चेंजेस चेंजेस केलेले आहेत ते झाले मी हे स्वतःच एवढंच केलेले आहे. फक्त. हा, हो अच्छा. हो, तर एवढं काही टेन्शन नाही घ्यायचं ना, वर्किंग एज अ लेक्चरर. नो नो सर, टेन्शन तर नाही, पण ते हो, ते चेंज सर्व झाले चेंजेस ना. मीच केले. हो, ते सर्व थोडंसं पहिल्या मीटिंग मध्ये थोडंसं घाई गडबडीने झाले, मग नंतर संध्याकाळी मग मी परत व्यवस्थित बसून स्टडी टेबलवर बसून मी परत तुम्हाला तुमच्या ग्रुपमध्ये थोडेसे हलके फुलके चेंजेस केलेले आहे. ओके. हा, आणि व्हॉट आर द चेंजेस विच आय हॅव टेकन द कॉग्निजन्स ऑल्सो. सो डू नॉट टेक एनी टेन्शन. नो नो, नॉट एट ऑल सर. हा, But विल the बी मीटिंग change was टुमॉरो. made ओके. there. So I wanted to make you clear that means these changes are there. So whether the changes are done by you or somebody means else. No. I myself. There is Yeah. no interfering radical in between course coordinator and the participants. UGC, आपल्या UGC HRDC सेंटर जे आहे, फॉर्मरली आपण त्याला म्हणत होतो स्टॉफ कम्युनिटी कॉलेज, त्यांनी मला पूर्ण पॉवर दिलेले आहे टू अरेंज द गेस्ट स्पीकर, टू अरेंज द चीफ गेस्ट. आपल्या असं काही इंटरफेअरिंग काहीच नाही आहे. दे हॅव गिवन फुल पॉवर, फुल फ्रीडम, फुल लिबर्टी टू मी. म्हणजे तुमच्या नोटीसला म्हणून आणायला सांगतो फक्त, बाकी काही नाही. हो, बस. ठीक आहे. ओके. सर एक विचारायचं होतं. बोला डॉक्टर दीप्ती मॅडम. सर, माझा ऍक्च्युली ग्रीन क्लाउड कम्प्युटिंगवर स्टडी आहे. म्हणजे माझा जो सेमिनारचा टॉपिक आहे त्याच्याशीच रिलेटेड आहे. रोल ऑफ ICT इन या एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन, जो तुम्ही दिलेला आहे. तर थोडं बिकॉज यू मग आर त्यात ओनली ग्रीन क्लाउड पार्टिसिपंट. कम्प्युटिंग हो, ठीक आहे, चालेल. थोडं सांगेल, Why I म्हणजे have जनरल given, सांगेल असं. हो खूप टेक्निकल नाही बोलणार, पण जनरल एक सांगेल नाही, त्यात. जनरलाइज. It should be ओके सर, benefited by तेच all the मला. participants also. या And why I शुअरली have सर, given शुअर. this topic to you, because you are the only participant who is belonging from computer science. Yeah, actually, sir, my PhD research topic was based on green cloud computing and sustainability, Okay. role of computers, manufacturing and production, disposable and sustainability. हाच माझा ठीक आहे ना, टॉपिक होता सर. ठीक आहे, तुम्ही त्याला कोरिलेट करू शकता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोबत. ठीक आहे सर. चला ठीक आहे, मग आजची मीटिंग लिव्ह करतोय. चला, ओके, बाय. गुड ओके, नाईट. बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.